Hello friends, uh, this is my third lecture of compiler design. Myself Mayank Jain. My channel name is Free Classes for CSE. So in this lecture we will discuss phases of compiler design. So phases of compiler design, in which first phase is lexical analyzer, second syntax analyzer, third phase is semantic analyzer, fourth intermediate code generator, fifth code optimization, sixth code generation. So these are the phases of compiler. So here the first three phases define the front end of the compiler, and last two phases define the back end of the compiler. And we have already discussed in the the previous lecture, analysis and synthesis pass model of compiler, where the first pass of compiler define the first three phases of the compiler, where analysis pass contain the lexical analyzer, syntax analyzer, and semantic analyzer. These three analyzer are belong to the analysis pass of the compiler, and the last three phases of the compiler, intermediate code generator, code optimization, and code generation, are belong to the synthesis pass of compiler. So here now we will discuss the phases of compiler in depth. So this is the language processing system of compiler, or phases of the compiler, how to perform in compiler. So first we will give the input as a source program to lexical analyzer, and lexical analyzer break all the complete program into a small parts or in chunks. So after break the program in words, lexical analyzer check the validity of each word and generate the tokens. Otherwise, if the word is not valid or invalid, then that word is sent to the error handler, and error handler produce the error message or recover the error. Then after producing the output as a token, the syntax analyzer receives all the tokens and wait for semicolon, because syntax analyzer check the validity of sentence, not the word. Syntax analyzer check the validity of sentence, and syntax analyzer receive the token from the lexical analyzer and wait for the token of semicolon. After receiving semicolon token, syntax analyzer check the validity of sentence. It means, suppose that syntax analyzer receive this is a pen, and this is the full stop in English sentence, and syntax analyzer receive this full stop, or we can say semicolon. So after receiving semicolon, syntax analyzer check the validity of this sentence and produce the output as a pass-through to semantic analyzer. Syntax analyzer takes the tokens and CFG, context-free grammar, as an input and produce the pass-through for semantic analyzer. तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, वर्ड की वैलिडिटी चेक करता है और टोकन प्रोड्यूस करता है. सिंटैक्स एनालाइजर सेंटेंस की वैलिडिटी चेक करता है और पास की प्रोड्यूस करता है विथ CFG, और यदि कोई एरर होगी तो एरर हैंडलर को करता है पास कर देगा. थर्ड phase of the compiler, semantic analyzer. Semantic analyzer check the validity of paragraph, or we can say semantic analyzer check the logical errors or meaning of the sentence, because suppose that if this meaning of the sentence is not valid, then it send the error to the error handler, or generate the annotated tree, because semantic analyzer use the SDT rules, syntax directed translation rules, and perform the some extra task with the parsing. So that is the working of semantic analyzer. And after
perform the semantic analyzer operation that produce the annotated tree to intermediate code generation. Intermediate code generation phase break the program into a small expression, or we can say this intermediate code generation split the program into a small operation. हम बोल सकते हैं कि सपोज दैट हमारे पास दिया हुआ है 4 × 5 + 2, सो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर इसको क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन को स्मॉल पार्ट में कैसे कन्वर्ट करेगा, इसको लगेगा T1 = 4 × 5, देन T2 = T1 + 2। तो ये क्या हो गया हमारा इंटरमीडिएट कोड। इंटरमीडिएट कोड में हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो असेंबलर होता है या फिर असेंबली लैंग्वेज होती है, उसका एक इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सो असेंबली लैंग्वेज में जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, क्या लिखने वाले हो आप, मल्टीप्लिकेशन R1, R2, R3। हम R2 और R3 का मल्टीप्लिकेशन करके कहाँ पर स्टोर करेंगे, R1 में। इस तरीके के क्या होंगे, ऑपरेशंस बनेंगे असेंबली लैंग्वेज में। R2 सपोज दैट हो गया हमारा 4, R3 हो गया हमारा 5। तो ये 20 किस में स्टोर हो जाएगा, हमारे R1 में स्टोर हो जाएगा। तो ये इंटरमीडिएट कोड क्या करता है, इस पर्टिकुलर हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे एक्सप्रेशन में डिवाइड कर देता है और ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन का काम क्या होता है कि जो भी रिडंडेंट एक्सप्रेशन होंगे, सब एक्सप्रेशन, उनको क्या करेगा, रिमूव करेगा, रिडंडेंसी को रिमूव करेगा, डेड कोड को एलिमिनेट करेगा। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है कि जो भी हमारे इंटरमीडिएट कोड में रिडंडेंसी है उसको क्या करे, वो रिमूव करे, कोड को ऑप्टिमाइज करे। सपोज दैट आपके पास लिखा हुआ है A + B + C × D + A + B के फॉर्म में हुआ। सपोज दैट ये हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हमें इंटरमीडिएट कोड में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो जब हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस सबसे ज़्यादा होती है, तो हम लिखेंगे T1 = टेम्परेरी वेरिएबल लिया हमने T1, इसमें लिखा A + B। देन उसके बाद हमने चेक किया अब किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो हमने देखा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे T2 = C × D। अब ये हमारा T2 हो गया, ये T1 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 3 प्लस बचे हुआ, तो तीनों प्लस की सेम प्रेसिडेंस है। देन हम एसोसिएटिविटी यूज करेंगे, तो प्लस की एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। तो हमने इस प्लस को पहले इवेल्युएट किया, तो हमने लिखा T3 = A + B और इसके बाद T4। अब हमारा सेकेंड प्लस क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो इसको इवेल्युएट करेंगे, हमने क्या लिखा, T4 = दिस इज अवर T3, तो T3 + C × D, तो C × D क्या है हमारा T2, तो हमने लिखा यहाँ पर T2। देन हमारे पास ये प्लस बचा हुआ है, तो हम लिखेंगे T5 = T4 + T1। ये हमारा क्या था, T4 था, ये हमारा क्या था, T1, तो हमने कहा T4 + T1 = T5। तो हमारा इंटरमीडिएट कोड आ गया, 1 2 3 4 5। ये हमारे 5 स्टेटमेंट हैं इंटरमीडिएट कोड के। ठीक है, अब इंटरमीडिएट कोड में जो हमारे सब एक्सप्रेशंस आए हैं, इसमें देखो आप कि हमारा जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट और स्टेटमेंट नंबर 3, ठीक है, कैसे हैं, सेम है, T1 = T। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, हम क्या करेंगे, T3 को रिमूव कर देंगे क्योंकि ये कैसा है, रिडंडेंट है। तो जहाँ जहाँ पर T3 यूज हुआ है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, T1। सो ये रिडंडेंट है, तो हमने इसको क्या कर दिया, इस T3 को बना दिया T1। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट कोड क्या होगा हमारा, स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 और 4, ये वाला क्या हो गया, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन जो फेस है वो कोड को ऑप्टिमाइज करती है। देन वो थ्री एड्रेस कोड हमारा क्या है, इंटरमीडिएट कोड का टाइप है या फिर रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। तो थ्री एड्रेस कोड अब हम किस में देंगे, कोड जनरेशन। कोड जनरेशन को क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा या फिर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो कोड जनरेशन किस में कन्वर्ट कर देगा, टारगेट प्रोग्राम। टारगेट प्रोग्राम को आप किस मशीन लैंग्वेज आप इसको क्या कर सकते हो,
एक एग्जीक्यूटिव कोड में कन्वर्ट हो गया, तो अब इसको आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये थी हमारी क्या, कंपाइलर की फेसेस, और एरर हैंडलर जो था वो एरर को रिकवर करेगा और एरर मैसेज रीजनरेट करेगा। और सिंबल टेबल जो होता है, जो भी हमारे लेक्सिकल एनालाइजर फेस होती है, लेक्सिकल एनालाइजर में जो भी आइडेंटिफायर्स आएंगे वो सारे के सारे आइडेंटिफायर्स की वहाँ पर स्टोर होंगे, सिंबल टेबल में स्टोर होंगे, और उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन सिंबल टेबल में क्या होगी, स्टोर होगी। तो ये था हमारा बेसिस ऑफ कंपाइलर। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि वो किस तरीके से वर्क करता है। सो ट्रांसलेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, हमने एक एक्सप्रेशन दिया x इक्वल टू वाई प्लस जेड इंटू 10, ये एक्सप्रेशन, ठीक है, और हमने इसको लेक्सिकल एनालाइजर फेस में दिया। लेक्सिकल एनालाइजर फेस में क्या होगा कि हमारा जो x था, ठीक है, हमने इसको क्या किया हुआ है, इसको एक वेरिएबल के फॉर्म में लिया हुआ है, ये वेरिएबल है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो ये जो लेक्सिकल एनालाइजर है टोकन जनरेट करेगा, ठीक है। अब ये ना तो डेटा टाइप है ना कीवर्ड है ना। सो इन सारे आइडेंटिफायर की वैल्यू कहाँ पर स्टोर कर देगा, ये सिंबल टेबल में स्टोर कर देगा। तो एक्स वाई जेड की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर कर दी, सिंबल टेबल में, ठीक है, और उनको इंडेक्स दे दिया। देन ये लेक्सिकल एनालाइजर टोकन जनरेट करके किसको सेंड करेगा, सिंटेक्स एनालाइजर को। इसमें टोकन बनाया ID1 इक्वल टू ID2 प्लस ID3 इंटू 10, ये इसने टोकन बना दिए। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि हम टोकन काउंट कैसे करते हैं और टोकन होते क्या है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसमें लेक्सिकल एनालाइजर ने क्या किया, वर्ड की वैलिडिटी चेक करके टोकन बना के सिंटेक्स एनालाइजर को दे दिया। सिंटेक्स एनालाइजर क्या करता है, पार्स ट्री बनाएगा, CFG का यूज करके पार्स ट्री बनाएगा, ठीक है, और फिर सिंटेक्स ट्री बनाएगा, ठीक है। तो CFG अब इसमें क्या किया, सिंटेक्स ट्री में क्या होगा कि जिस फॉर्म में ये एक्सप्रेशन एवेल्युएट हुआ है उस तरीके से इसने सिंटेक्स ट्री डिजाइन कर दिया। तो सबसे पहले इसकी इस एक्सप्रेशन में प्रेसिडेंस किसकी सबसे ज़्यादा थी, मल्टीप्लिकेशन की, तो उसने मल्टीप्लिकेशन को क्या कर दिया, सबसे पहले परफॉर्म कर दिया। देन इसके बाद किसकी सबसे ज़्यादा थी, प्लस की, तो उसने प्लस को फिर एवेल्यूएट कर दिया बाय, उसका लेफ्ट था और राइट था मल्टीप्लिकेशन। देन इसके बाद क्या था, असाइनमेंट बचा था, तो आ गया एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर दिस। तो ये हमारा क्या बन गया, सिंटेक्स ट्री। किस फॉर्म में यदि ये फास्ट ट्री बन जाता है, सिंटेक्स एनालाइजर किसी भी एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रिंग का फास्ट ट्री डिजाइन कर देता है, इसका मतलब वो स्ट्रिंग कैसी वैलिड है, ठीक है। अब इसको सेमेंटिक एनालाइजर में पास करेगा। सेमेंटिक एनालाइजर क्या करता है, इसको मीनिंग चेक करता है। अब हमने जो 10 लिखा था, यहाँ पर ध्यान से देखना, हमने जो 10 लिखा था, ये 10 इंट है, रियल है, क्या है ना। तो वो सेमेंटिक एनालाइजर ने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ये इंट इंटू रियल, मतलब या तो इंट भी हो सकता है, फ्लोट, डबल, लॉन्ग और रियल कुछ भी हो सकता है 10, इसलिए इसको इंटू 10 लिख दिया और पूरा का पूरा सिंटेक्स भी एज इट इज है। देन इसको इंटरमीडिएट कोड में पास किया। तो इंटरमीडिएट कोड कैसे बना, T1 में हमने 10 स्टोर कर दिया। देन हमने सबसे पहले किसको इवेल्यूट किया था, दिस जेड इंटू 10, मतलब ये ID3 था, है ना, देख सकते हो आप, ये कौन सा था, ID3, ये ID2 ID1, मतलब ये हमारा ID1 था, ये ID2 था और ये ID3 था। अब आप देखोगे इंटरमीडिएट कोड, ID इंटू T1, ये 10 है, T1 का है 10। इसके बाद प्लस किया था हमने ID2 प्लस T2 क्या है हमारा, ये मल्टीप्लिकेशन था, जेड इंटू 10 था, और ये क्या है हमारा, Y है ना। इसके बाद हमने इस T3 को कहाँ पर स्टोर कर दिया, T4 में। तो T4 हमारा क्या है, मतलब T4 की वैल्यू हमने ID1 में स्टोर की थी, ID1 क्या है हमारा, X। तो ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट कोड, ये हमारा क्या है, इंटरमीडिएट कोड। अब हम कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज में जाएंगे। अब इस कोड को ध्यान से देखना, इसमें कितने स्टेटमेंट हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 4 5, 5 स्टेटमेंट्स हैं। अब इस 5 स्टेटमेंट रिड्यूस हो जाएंगे, यहाँ पर रिड्यूस हो गए। अब देखिए कितना बचा, 1 और 2, यहाँ पर देख सकते हो T1 इक्वल टू ID3 इंटू 10.0, मतलब ये क्लोज पॉइंट नंबर हो गया। और ID1 इक्वल टू ID2 प्लस T1। अब उन्होंने क्या किया कि जो 10 की वैल्यू थी T1 में, इसको इसको एलिमिनेट कर दिया, इस वाले को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पर डायरेक्ट हमने 10 पुटअप कर दी। देन इसके बाद इन्होंने जो T3 की वैल्यू T4 में डाली थी, ठीक है, ये जो रिडंडेंसी थी, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, ये रिडंडेंसी इसने रिमूव कर दी, मतलब डायरेक्ट आई वाई प्लस जेड इंटू 10 को कहाँ पर स्टोर कर दिया, ID1 में स्टोर कर दिया, मतलब X में, ठीक है। तो
आप देख सकते हो यहाँ पर डायरेक्ट जेड इंटू 10 और वाई प्लस T1 और ये किसमें स्टोर हो गया एक्स में। तो ये दो स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया, मतलब कितना ऑप्टिमाइज कर दिया इस इंटरमीडिएट कोड को कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज में। अब ये जो ऑप्टिमाइज कोड था इसको कोड जनरेशन फेज किसमें कन्वर्ट कर देगी, असेंबली कोड में या लो लेवल लैंग्वेज में। तो हम असेंबली लैंग्वेज में इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में हो। तो इसको कन्वर्ट किया मूव। अब हमने क्या किया था, ID3 जो हमारा जेड की वैल्यू थी वो हमने R1 में स्टोर कर दी। देन इस 10 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया किससे, जेड से। तो हमने यहाँ पर लिखा S1, ये ऑपरेंड को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो हमने इस 10 को मल्टीप्लिकेशन किया किससे, R1 से। ये हमारे निमोनिक है, ठीक है, इन्हें निमोनिक बोलते हैं। निमोनिक है ये, ठीक है, एम साइलेंट होता है, निमोनिक, ठीक है। तो इन निमोनिक की हेल्प से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं असेंबली की कोड में। देन मूव ID2 क्या था, बाय को I2 में रखा। अब हमें प्लस करना है तो हमने R1 को R2 के साथ प्लस किया क्योंकि R2 में स्टोर थी हमारी वैल्यू, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या किया कि जो हमारा R1 R2 की वैल्यू को ऐड किया था वो हमने किसमें मूव कर दिया, R2 को किसमें मूव कर दिया, ID1 में। ID1 क्या हमारा एक्स। तो ये था हमारा असेंबली कोड, था हमारा क्या, कंप्लीट कोड कंपाइलर की फेसेस। और हमने ट्रांसलेट, मैंने आपको ट्रांसलेट करके ही बताया कि कैसे ट्रांसलेट करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, ठीक है। इसके बाद मैं एप्लीकेशन की बात करता हूँ कि कंपाइलर के रियल वर्ल्ड में क्या क्या यूजेस हैं। तो हम जो हमारा जो कंपाइलर होता है, ठीक है, हमारे कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जहाँ पर हम कंपाइलर को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा आपको कि जो टेक्निक्स हम लेक्सिकल एनालाइजर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट एडिटर में, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम में और पैटर्न रिकॉग्निशन प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। और जो टेक्निक हम पार्सर में यूज़ कर रहे हैं वो हम क्वेरी प्रोसेसिंग सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं SQL। और ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम कंपाइलर में यूज़ कर रहे हैं उसको हम अपनी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। और NLP में भी हम इसका यूज़ करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर हम कंपाइलर डिज़ाइन का यूज़ करते हैं, है ना। तो आई होप आपको एक लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।